Assalamu alaikum. How are you all? Today we are going to start with computer lecture which is network topologies. Network topologies are the methods used to define the arrangement of the different devices in a computer network where each device is called a node. Node क्या होते हैं? These are our nodes. Each system is our network is called a node. द अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट में ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं ये हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। द रिलायबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस, इसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों डिपेंडेंट होती हैं और इसको इम्पैक्ट करती हैं जो कि जितनी भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में अटैच्ड होती हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन कॉल्ड द बस। This is a diagram of the bus topology in which we have 1, 2, 3, 4, 5 nodes. All the 5 nodes are connected with a central cable, that is a central, this is also called a central wire. Now come to the example of a bus topology. Imagine a chalkboard is in a classroom where every student can see the notes written by the teacher. Here the chalkboard represent the shared communication line. मीन्स कि जो हमारे पास चॉक बोर्ड है वो बेसिक जो है वो हमारी कम्युनिकेशन जो है पूरी क्लास में जो है वो शेयर कर रहा है। दैट्स वाई ये हमारा क्या है, बेसिक जो है वो शेयर्ड मीडियम है। कम टू एडवांटेज, बस टोपोलॉजी इज़ ईज़ी टू सेटअप। ईज़ी टू सेटअप क्यों है? बिकॉज हमारे पास इसमें एक जो है वो बेसिक सेंट्रल केबल है जिसके साथ सारे हमारे सिस्टम जो हैं वो अटैच्ड है। बट इफ़ द मेन केबल फेज, इसका हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेन केबल हमारी फेल हो जाती है सारे का सारा सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो कोलैप्स कर। देन कम टू स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट कम टू इट्स diagram part. In star topology, all the computers are attached with the central hubs, while nodes are attached. All the nodes are attached with a central hub. In bus, all the nodes are connected to the central wire. In bus topology, all the nodes are connected to the central hub. In star topology, each node is a network communication with the other via a central switch or hub. The hub works as a data flow or repeater. सारे की सारी जो मैसेजेस हैं जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो सेंट्रल हब को भेजेंगे और हब आगे जो है उन मैसेजेस को रेलिवेंट कंप्यूटर के को डिलीवर करेगी। Think of a school principal office connected to all the classroom through the intercom. The principal office in the hub and the classrooms are the nodes. मेन हब क्या हमारे पास प्रिंसिपल ऑफिस है और जितने भी जो है क्लासरूम्स उसके साथ अटैच हैं वो सारे के सारे हमारे पास नोड्स हैं। In a ring topology, each system is connected in a circular path with other device. Come to its diagram part. In a diagram ring topology, all the nodes are collected in a circular way. Circular way. डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, डाटा एक वन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। कंसीडर अ रैली रेस वेयर ईच रनर passes the baton to the next runner in a circular until it reaches the starting point again. Then come to advantages and disadvantages. Ring topology can handle high traffic. High traffic को जो है वो ये handle कर सकती है. If one connected system is failed, the whole network is affected. That is its disadvantage. But इस disadvantage का solution ये है कि the two-way ring can solve the problem in some extent. ठीक है, ये हमारे पास वन वे भी होती है हमारे पास और इसको हमारा हम लोग जो है ये हमारे पास टू वे भी, मतलब कि ये बाई डायरेक्शन भी, यूनिडायरेक्शन एंड in mesh topology each device is connected to the every other device. Advantage we have, this provide high redundancy and reliability. Come to this diagram part where system 1 has 1 2 3 4 5 paths. By using these 5 paths, system 1 can send data to many others computers that are attached to it. Then come to imagine a
city where every house is directly connected to every other house by the road. If one road is blocked, there are multiple alternative routes. Advantage: mesh topology is very reliable because if one link fail, data can be rerouted through the other links. मीन्स कि अगर हम लोगों के पास एक कनेक्शन हम लोगों का फेल हो जाता है तो हम लोग दूसरे किसी भी जो है वो कनेक्शन से जो है वो डाटा को सेंड कर सकते हैं. In transmission mode, network communication mode describe how data is transmitted between devices. दो डिवाइसेस के दरमियान में डाटा कैसे सेंड किया जाता है, दैट इज़ आवर ट्रांसमिशन मोड. फर्स्ट मोड वी हैव विद अस इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन data transmission is unidirectional, means data only travel in one direction, meaning it flows in only one direction. Like CPU and keyboard communication is only one direction. कीबोर्ड जो है वो सीपीयू को जो है वो सिग्नल एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में हमारे पास भेजता है. उसके बाद सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करके फर्दर हमारे पास डाटा को जो है वो शो कर. इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन द डायरेक्शन ऑफ द डाटा फ्लो इज़ फिक्स्ड होता है. ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा. मेकिंग इट यूज़फुल फॉर द एप्लीकेशन वेयर ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज़ नीडेड. जहाँ पे हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरत पड़ती है. जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डाटा जो है वो जस्ट सीपीयू को सेंड होना है. अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास रिटर्न में जो है सीपीयू जो है वो कीबोर्ड को डाटा सेंड नहीं करता है. इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन. डाटा दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक टाइम पे नहीं होगा. वन डिवाइस मस्ट वेट फॉर द अदर टू फिनिश द ट्रांसमिटिंग बिफोर इट कैन स्टार्ट. जिस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे वॉकी टॉकी की एग्जांपल हमारे पास सामने है, या फिर टॉयज़ टेलीफोन है. इन वॉकी टॉकी क्या होता है कि पहला पर्सन जो है वो दूसरे के मैसेज जो है वो डिलीवर होने का वेट करता है. जैसे ही फर्स्ट वन जो है मैसेज अपना जो कन्वे कर देता है तो दूसरा पर्सन जो है फिर अपना मैसेज जो है वो फर्स्ट पर्सन को जो है वो डिलीवर करता है. साइमल्टेनियसली मीन कि एक टाइम पर जो है ना तो आप जो है वो मैसेज रिसीव कर सकती हैं, ना आप एक टाइम पे जो है वो मैसेज जो है वो सेंड कर सकती हैं, जबकि आपको दूसरे रिसीवर का वेट करना पड़ता है. सिंपल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउज डाटा टू डिलीवर इन अ बोथ डायरेक्शन. Both devices may transmit and receive data simultaneously at a same time. Like telephone conversation are the example of the full duplex communication. Both people can talk and listen at the same time without waiting for their turn. इसमें टर्न का वेट नहीं करना पड़ेगा. सेंडर डाटा सेंड भी कर सकता है और एट अ टाइम रिसीवर डाटा जो है वो रिसीव भी कर सकता है. Then we have a did you know with us. The first telephone were half duplex where only one person would speak at a time. Modern telephone use full duplex communication, allowing both people to talk and listen simultaneously. This is our end of the lecture. Allah Hafiz.